Maintain silence, please. Ladies and gentlemen, the chief guest for the day, Honorable Shri Varun Gandhi ji, is in the premises. रास्तों पर बिछे शूल है, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध ना बन, तू उठ खुद अपनी राह बना, माना का ही कुछ अर्थ है, तू युद्ध कर, बस युद्ध कर. Ladies and gentlemen, what an honor it is for me today in person to have recited these thoughtful and we take pride jointly in welcoming our chief guest, Honorable Shri Varun Gandhi ji, to our Amrapali campus. Flowers are a proud assertion that a ray of beauty outvalues all the utilities of the world. Flowers don't worry about how they are going to bloom. They just open up and turn toward light. That's make them beautiful. Beholding the same feeling of outvaluing all the utilities of the world and letting them bloom and look more beautiful, I request a floral welcome of our chief guest. May I request Shri Naren Dhingra ji, Secretary Amrapali Group of India. Thank you, sir. Thank you very much. Udyam Dhan Sampada. Shatru Buddhi Vinashaya. Deep Jyoti Namastute. I can do that. I invite the Honorable Chief Guest, Shri Varun Gandhi ji, and esteemed dignitaries to please come on stage for the auspicious land. And currently represents the Sultanpur constituency in Uttar Pradesh. In 2012, he was appointed the youngest ever National General Secretary of the BJP and is a member of its national executive. Our chief guest has been a prominent member of a number of parliamentary standing committees, including defense and foreign policy. His leadership traits were evident in school days. During his studies at London School of Economics, Shri Gandhi was the first non-white person to be elected as a president. A graduate from London School of Economics, Shri Gandhi is widely respected as an opinion leader and policy analyst. He writes the country's most widely circulated newspaper, regional dailies and national dailies, including the Times of India, the Hindu, Hindustan Times, the Indian Express, Amar Ujala, Samvad, and many more, reaching over 200 million readers. Shri Gandhi is also a poet by inclination. He published his first collection of poems, The Otherness of Self, at the age of 20. His second book, Stillness, published in 2015, broke sales record and became the best-selling non-fiction book in India, with over 10,000 copies sold in the first 2 days of its release. Shri Gandhi conducted a massive movement in Uttar Pradesh to make farmers debt-free, freeing 4,000 farmers from debt by raising over rupees 19 crore through local crowdfunding. He himself
gave over 1 crore of his parliamentary salary for the same noble cause. Thank you so much for this wonderful gesture towards our people in this country, sir. Today, Shri Gandhi will throw light on his king, Reverend Dr. Martin Luther King Jr. He says, one of the great liabilities of history is that all too many people fail to remain awake through great periods of social change. Every society has its protectors of status quo and its fraternities of the indifferent who are notorious for sleeping through revolutions. Today, our very survival depends on our ability to stay awake, to adjust to new ideas, to remain vigilant, and to face the challenge of change. I also feel privileged enough to give my voice to the words of Dr. S.K. Singh, COO AIHM, who is seeking hope of greater youth's participation in nation building through his own thoughtful words. He says, जवान आँखों में चमक की कमी है आजकल, अपनों की आँखों में देखी नमी है आजकल, न जाने रिश्तों में कैसे खिंचाव हैं आजकल, राहें तो वही हैं पर कितने भटकाव हैं आजकल, जोश है पर होश खोसा गया है कहीं, नन्ही उंगलियां जवानी में दिशाहीन हैं कहीं, निर्मल जलधारा बन अपनी पहचान को बह चलती हैं कहीं, निर्मल कोमल चंचल बचपन अपनी पहचान खो बैठा है कहीं। जिस धरा में जवान वर्तमान खामोश है आजकल, उस धरा के भविष्य में अंधकार है आजकल हर पल, जवान आँखों में चमक की कमी है आजकल। Honorable Chief Guest Sir, Shri Varun Gandhi ji, we are eager to hear your experiences and thoughts on empowering youth for nation building today. May I request you to please come on stage and enlighten us all today. Thank you. आदरणीय श्री आर.सी. मोंगा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र ढींगरा जी, आदरणीय डॉक्टर एस.के. सिंह जी, प्रोफेसर M.K. पांडे जी, प्रोफेसर A.P. पपरेजा जी, प्रोफेसर ऋत्विक दुबे जी, डॉक्टर पंकज झा जी, डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, और मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर संजय ढींगरा जी का, जिनके वजह से मैं यहाँ आया और जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। संजय जी, thought I had forgotten your name. आज शहीदी दिवस है और ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि अंत में ये जो बलिदान था शहीद भगत सिंह जी का, क्या वो भूतकाल में था कि क्या वो आज हम में जिंदा है। शहीद भगत सिंह एक आदमी का नाम नहीं है, शहीद भगत सिंह एक रास्ते का नाम है, जो रास्ता हमको इंसाफ दिलाएगा, जो रास्ता हमको बड़े सपने देखने के लिए मजबूर करेगा और जो रास्ता हमको हमेशा बहादुर रखेगा मन ही मन में। और मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि आज भले हम उनके बलिदान का एक दिवस, उनके त्याग तपस्या का एक दिवस मना रहे हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, हम लोगों के खून में जिंदा है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारे युवा हैं। 41% भारत 20 साल की उम्र से कम है। 2025 में हम लोग दुनिया के सबसे नौजवान देश बनेंगे। आज मैं युवाओं और राष्ट्र निर्माण के बारे में आपसे बात करने आया हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि युवा राष्ट्रनीति से, राजनीति से अलग थलग अपने आप को मानता है, और ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे देश का अगर विराट इतिहास देखा जाए तो 1828 में पहला औपचारिक छात्र समूह बना था दिल्ली के हिंदू कॉलेज में,
जिसको एकेडमिक एसोसिएशन का नाम दिया गया था 1828 में। और आप लोगों की प्रगतिशील सोच देखिए, 1828 में क्या दो मुद्दे उन्होंने उठाए थे? महिला शिक्षा और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, मतलब अंधभक्ति का अंत। हम लोग ये देखते हैं कि 1936 में पहला युवा राजनीतिक संगठन बना, जिसका गठन लखनऊ में हुआ और उसका नाम था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। और ये एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि ये आखिरी बार थी कि मौलाना आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मंच पे आए। ये आखिरी बार है कि ये लोग एक मंच पे आए लखनऊ में 1936 आपके युवा संगठन के गठन के लिए। और ये युवा संगठन ने काम किया भारत के पूर्ण स्वराज के लिए। हज़ारों बार हड़तालें दी, हज़ारों बार जेल गए, हज़ारों बार रेल रोको, एजिटेशन किया, और उसका अंत ये हुआ कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, और उसकी कीमत बहुत नौजवानों को चुकानी भी पड़ी। कुछ महीने पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र गया था और मुझे एक बुज़ुर्ग आदमी मिलने आया। उसने कहा मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, बट वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैंने कहा बाबा, मैं तुमको कहीं डॉक्टर के यहाँ दिखवा दूँ, अस्पताल दिखवा दूँ, आपसे चला नहीं जा रहा। कहा नहीं बेटा, जब मैं 18 साल का था, जब मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, तब मुझे मारा इतना गया था कि तब से मेरा एक पैर जो है आधा खराब हो गया। मैंने सोचा कि कितने लाखों करोड़ों लोगों ने क्या क्या त्याग अपने शरीर से दिया, बाकी की तो बात छोड़िए, कि आज हम और आप रूबरू इस तरीके से स्वतंत्र तरीके से हो पाएं। आज़ादी के बाद भी युवाओं ने सामाजिक आंदोलन के द्वारा हमेशा नेतृत्व दिखाया। गुजरात में 1973 में एक नवनिर्माण आंदोलन अहमदाबाद से उठा। ये नवनिर्माण आंदोलन अहमदाबाद विश्वविद्यालय से उठा, जहाँ वहाँ पढ़ने वाले नौजवानों ने कहा कि यहाँ न खाना अच्छा है, न रहने सहने का तौर तरीका अच्छा है, ना यहाँ पे फीस जो हम देते हैं उस तरीके से हमारा सम्मान होता है। और इस तरीके से राजनीतिक संस्थाएं, व्यवस्थित संस्थाएं की मिली भगत के वजह से ऐसे हो रहा है। और हम निरंतर हड़ताल करेंगे, निरंतर विरोध करेंगे। उसका असर ये पड़ा कि कुछ महीने बाद पूरे गुजरात के अधिवक्ता, पत्रकार, समाज सेवी सब एक हुए और उन्होंने इन स्टूडेंट्स का साथ दिया। और इतना जन दबाव पड़ा नौजवानों के द्वारा कि एक चुनाव जीती हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, न दुनिया के इतिहास में, कि एक स्टूडेंट एजिटेशन के वजह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा और एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये युवाओं की ताकत का परिचय है। देखिए, आज मैं उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। एक छोटे से गांव रैनी से चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक ऐतिहासिक काम किया। जब दुनिया में कोई वृक्षारोपण पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहा था, तो उत्तराखंड के लोगों ने उसके बारे में सोचा और एक विचार क्रांति पूरे दुनिया में लाई। अच्छा, ये तब की बात है जब ना कोई सूचना क्रांति थी, ना संचार क्रांति थी, ना फोन था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था।
जन जन का जुड़ाव बहुत मुश्किल था। तब इन्होंने इतने बड़े आंदोलन को छेड़ा कि उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि यहाँ 15 साल तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। ये जन दबाव और युवा दबाव का परिचय है। भाइयों, आज 150 मिलियन लोग, 15 करोड़ लोग फेसबुक पे हैं, 16 करोड़ लोग व्हाट्सएप पे हैं, 25 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और 90 करोड़ लोगों के पास फोन्स हैं। लोगों को जुटाने का आज एक बहुत शानदार अवसर हमारे सामने है और आसान अवसर हमारे सामने है। इसका महत्व हम लोगों को समझना चाहिए। आप नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा देखिए, एक ऐसा मुद्दा जब पिछले साल टेलीकॉम कंपनीज ने कहा 2 साल पहले कि भाई इंटरनेट के लिए पैसा देना पड़ेगा, कुछ चीज़ फ्री रहेंगी, ज़्यादातर पैसा देना पड़ेगा, और ये आप देख सकते हो, ये आप नहीं देख सकते, तो नौजवानों ने विरोध किया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि हमको आप डिटेल में अपने रिस्पॉन्सेस, अपनी अभिव्यक्ति भेज दीजिए। और इसका नतीजा क्या हुआ कि 18 लाख, उन्होंने सोचा 100-200 लोग भेज देंगे, इसको पारित करा देंगे। 18 लाख युवाओं ने एक हफ्ते में अपने रिस्पॉन्स भेजे और change.org पे दुनिया पे डाला, और आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के 30 करोड़ लोगों ने अपना समर्थन हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए किया और सरकार को झुकना पड़ा, और आज हमारा इंटरनेट स्वतंत्र है और निःशुल्क है। मैं बंगाल गया था, मुर्शिदाबाद में एक गांव है भपटा, उसमें एक नौजवान को मैंने देखा जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है बाबर अली। और बाबर अली को BBC ने और CNN ने दुनिया का सबसे कम उम्र का हेडमास्टर कहा। बाबर अली बहुत गरीब परिवार से आता था, लेकिन उसके माता पिता शिक्षा पे बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने उसको एक स्कूल भेजा जो 5 किलोमीटर दूर था। बाबर ने देखा कि मेरे गांव में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो स्कूल जाता है, तो वो गया और वो रोज़ वापस आके जो वो पढ़ता था स्कूल में, एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के अपने गांव के बाकी बच्चों को पढ़ाता था 9 साल की उम्र में। और जो टूटे हुए चौक था वो स्कूल से मांग के ले आता था, और टूटे हुए टेराकोटा टाइल से उसने एक ब्लैक बोर्ड बनाया और शुरुआत उसने की। CNN ने उसको अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया, 50 लाख रुपए दिए, उस समय $1 लाख। कोई और होता तो अपने लिए घर बनाता, गाड़ी लेता, खेती बाड़ी खरीदता, लेकिन बाबर ने कहा नहीं, ये सपना यहीं नहीं रुकेगा। उसने उस 50 लाख रुपए से अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, और जहां 8 बच्चे 10 बच्चे एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, आज वहां 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके स्कूल में। और आप देखिए, आज बाबर 23 साल का है, आज भी नौजवान है और कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन जितने बच्चों को उसने पढ़ाया उसमें से 60 बच्चे टीचर बने, और वो गांव-गांव आज जाते हैं और वो और बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस तरीके से एक क्रांति आ गई उस जिले में। मैं ऐसे शख्स को नमन करता हूं। मैं आंध्र प्रदेश गया था। मैंने आंध्र प्रदेश में एक आदमी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने संपर्क किया। उनका नाम है श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला नेत्रहीन पैदा हुए थे, अंधे पैदा हुए थे, और जब वो क्लास 10 पार किए तो उन्होंने कहा मैं साइंस करना चाहता हूँ। तो कोई भी स्कूल ने उनको लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा भैया, एक अंधे व्यक्ति को हम साइंस कैसे पढ़ाएंगे, या दुनिया भर के
प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, दुनिया भर की प्रैक्टिकल है, वो एक अंधा व्यक्ति कर कैसे पाएगा? उन्होंने कहा मैं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम नहीं कर सकते, आपको नहीं ले सकते।